Good morning, friends. So today in this video of geography, we will talk about India and the world, or India's trade relationship with the world. So before starting the topic, let me tell you something important about India. So like we know, there is an imaginary line which divides India into two parts, and that imaginary line is called Tropic of Cancer. So it passes through 8 states of India. So that is very important to know which are these 8 states. So first of all, this is Gujarat, then some part of Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. These are the 8 states. First of all, we have Gujarat, then Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. These are the 8 states. Now if you talk about the downside of Tropic of Cancer, this part is called Indian Peninsula. Peninsula is what? A piece of land that is covered by water from the 3 sides. 3 साइड से जो पानी से घिरा हुआ हो एक लैंड ऑफ पीस है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं. सो विच आर द 3 वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला? ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन पेनिनसुला वी हैव Arabian Sea. On the eastern side of Indian Peninsula we have Bay of Bengal, and on the southern side of India, downside, we have Indian Ocean. So this part of India, means southern part of India, is called peninsula because of the 3 water bodies on the 3 sides. So from this point of view, like you know, the southern part of India is protrudes. Protrude means बाहर की तरफ निकल जाता है, तो इसकी जो एक लोकेशन बन जाती है इंडियन ओशन के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. सो अब इन पॉइंट्स को जानने के बाद वी विल टॉक अबाउट इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड. So now let's have a look on the map of world. First of all, let me tell you about the continents. This is North America, this is South America, this one is Africa, and this one is Europe. Then on the eastern side we have Asia, and then downside we have Australia, and this side we have Antarctica. These are the continents. Why I am telling about this? Because we are going to learn about the location of India with reference to these continents. So here, this is the location of India. It lies in the eastern part and the western part of Asia, middle of that. Eastern part this side, western part this side of Asia, it lies in the middle. Or you can say it lies in the southern part of Asia. And because of this, it has the advantage of its location in Indian Ocean. Here downside we have Indian Ocean, and this is the only ocean in the world which has been named after a country. एकमात्र एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडिया के नाम पे रखा गया है, इसका इंडियन ओशन. सो इसके रेफरेंस से हम देखते हैं इसकी लोकेशन क्या रही है. अर्लियर व्हाट वाज देयर, इंडिया वाज कनेक्टेड विद द नेबरिंग कंट्रीज और द अदर कॉन्टिनेंट्स through land trade only. Or you can say in the northern part we have Himalayas, or the mountains area is there, mountainous area. वहाँ से इंडिया कनेक्टेड था पहले. जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं और जो हमारा मैरीटाइम एरिया या फिर सी बॉडीज़, जो सी रूट है, उससे इंडिया कनेक्ट नहीं था पहले. माउंटेन पासिस थे पहले. माउंटेन पास क्या होते हैं? पहाड़ों के बीच में जो आने जाने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं उनको माउंटेन पास बोलते हैं. तो उसके थ्रू इंडिया कनेक्टेड था बाकी वर्ल्ड से. बहुत सारी चीज़ें जो है डील हुआ करती थी भारत की, वो हम यहाँ पर थोड़ा बढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग. सो देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं. इंडिया एंड द वर्ल्ड. इंडिया हैज़ द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्टर्न एशिया. ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट, उसके मिडल में इसकी लोकेशन है. डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशन. डेक्कन पेनिनसुला, दिस पार्ट ऑफ इंडिया, इट प्रोट्रूड्स मतलब बाहर की तरफ निकल जाता है इंडियन ओशन के अंदर, एंड इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेज ऑफ दिस लोकेशन. India's relationship with the world
हमने पढ़ा है कि पुराने समय से भारत के जो रिलेशनशिप वर्ल्ड के साथ थे वो क्या थे, माउंटेन पासेस के थ्रू थे, सी रूट से हम ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे। सो उसके बाद ये सारी चीज़ें कनेक्ट हुई है। उस समय पे हमारा क्या हुआ, सो लैंड बाउंड्रीज और यू कैन से माउंटेन पासेस और सी रूट्स, दो तरह से इंडिया कनेक्ट है। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़। जो माउंटेन पासेस हैं या फिर आप कहें सी रूट्स हैं, इनके द्वारा भारत से और दूसरे संसार के हिस्सों में बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ है। जैसे कि हमने पढ़ा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़। आइडियाज़ में आप क्या करेंगे, जैसे कि उपनिषद हैं हमारे, पंचतंत्र है, इस तरह के आइडियाज़ भारत से दूसरे देशों में गए हैं। उसके साथ साथ हमारे जो डेसिमल सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, वो भी इंडिया से बाहर गया। और ऐसा ही नहीं है कि भारत के अंदर भी वेस्टर्न एशिया से बहुत सी चीज़ें जो है इंडिया ने आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है अडॉप्ट किया है, लाइक मिनारेट्स एंड डोम्स जो कि गुंबद आकार के होते हैं, वो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वेस्टर्न एशिया से इंडिया ने जो है बोरो किया है। सो इन रास्तों के थ्रू इंडिया यहाँ से कनेक्ट है। अब इस लोकेशन की एडवांटेज क्या है, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बोथ, दोनों से इंडिया यहाँ कनेक्ट हो सकता है फ्रॉम डाउन साइड, ऑल्सो विद ऑस्ट्रेलिया, देन विद अफ्रीका, एंड अर्लियर इट वॉज कनेक्टेड टू यूरोप थ्रू दिस रूट। अफ्रीका के डाउन साइड से यूरोप के साथ कनेक्ट होता था। सो वहाँ पर एक सोल्यूशन निकाला गया 1869 में, स्वेज कैनाल को जो है वहाँ पर डेवलप किया गया। एंड स्वेज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। मेडिटेरेनियन सी दिस इज हियर एंड रेड सी। मेडिटेरेनियन सी इट लाइज बिटवीन अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, भूमध्य सागर जिसको बोलते हैं। तो भूमध्य सागर यहाँ पर है, और भूमध्य सागर और लाल सागर इनके रेड सी को जोड़ने वाली जो कैनाल बनाएगी जिसको बोला गया था स्वेज कैनाल। 1869 में इसको बनाया गया था। और उसके बनने के बाद लगभग 7000 किलोमीटर का जो ये एरिया ऊपर से आता था इंडिया तक पहुंचने के लिए, ये जो है रिड्यूस हो गया है। सो आफ्टर द डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनाल, द डिस्टेंस ऑफ 7000 किलोमीटर इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। राइट नाउ वी कैन कनेक्ट इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर। सो दिस इज देयर, एंड देन we see that India can be connected to all the parts of the world through sea routes. Earlier it was connected only land routes. Right now it is in the connection of world with sea routes also. So this is the advantage of India's location in the Indian Ocean, you can say. So in this video we have talked about India and its location. Important things, let me revise one more time. We talked about Tropic of Cancer. It passes through how many states of India? 8. And name of them are गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अदर थिंग ऑफ important that is GK based. When was Suez Canal constructed? It was constructed in 1869. Year it was. Other thing, if you talk about how much of distance has been reduced after the construction of Suez Canal, 7000 approximately, you can say. So this is the advantage of India's location in Indian Ocean. In our next videos, we will talk about physical features of India. Thank you very much.